تو پھر ایک وقت آئے گا کہ ان بستیوں کے لوگ اٹھیں گے اور ان بستیوں کو جا کر آگ لگا دیں گے۔ جب ہم جاگ گئے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ آغاز ہے اور اس کے ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ آج ہم نے بجلی کے لیے نکلے ہیں، کل پیٹرول کے لیے نکلنا پڑے گا، پرسوں آٹے کے لیے، پھر چینی کے لیے نکلنا پڑے گا۔ اور ایک دن چونکہ دیکھیں جو ہمارے یہاں پہ انصاف کے ادارے ہیں، ہماری عدلیہ ہے، وہ 130ویں نمبر کے اوپر ہے۔ جو انصاف کے ایسے ادارے ہیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ 20 لاکھ یونٹ جو ہے ان کے کسی قسم کا کوئی 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا جا رہا ہے، پلس ان کے مراعات جو دی جا رہی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ عوام آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ یہاں کھڑے ہوئے یہ پیغام ہے ان کو کہ یہ مراعات اور یہ عیاشیاں اس مقروض ملک سے ختم کی جائیں، اداروں کو اپنی حدود میں آنا چاہیے۔ اور ہمارا اس وقت موجودہ بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، راستہ نکالا جائے، جمہوریت کو پروان چلایا جائے اور فوری طور پر الیکشن کے لیے ڈیٹ اناؤنس کی جائے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم لوگ اگر اس سیاست میں ان ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اپنی اس غریب عوام کے لیے، کیونکہ جہاں پہ ہمیں یہ ہمارے بھائی بزرگ اور اہل علاقہ جہاں پہ عزیز ہے وہاں پہ پارٹیاں عزیز نہیں ہیں۔ میں منتظمین کی طرف سے تمام اہل علاقہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ، محض 2 دن کے نوٹس پہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اس شدید گرمی میں آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ایک ذمہ داری شہری ہونے کا آپ نے حق ادا کیا۔ اس پروگرام کا ایجنڈا صرف اور صرف بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے ناجائز بل اور پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے متعلق ہے، لہٰذا جتنے بھی مقررین تشریف لائیں گے ان تمام سے گزارش ہے کہ آپ نے پروگرام کے ایجنڈے کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ جناب رانا کامران صاحب کو سٹیج پہ دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اختصار سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو۔ اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت اب بپا کر دو۔ تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی۔ تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی۔ ریاست گر بچانی ہے، سیاست چھین لو ان سے۔ ریاست گر بچانی ہے، سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ عزیز دوستو، جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون سے انسان خسارے میں ہیں؟ جو آنکھیں بند کر کے ظلم تو سہتے ہیں لیکن بغاوت نہیں کرتے۔ وہ لوگ خسارے میں ہیں جو حق بات پر کھڑے نہیں ہوتے، اور وہ لوگ خسارے میں ہیں جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ ظلم کو سہتے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر عزیز دوستو، سب سے بڑا جو ظالم طبقہ ہے وہ یہی مظلوم طبقہ ہے،
जब इन पर जुल्म होता है तो ये खामोशी से खड़े रहते हैं, ये बगावत नहीं करते, ये उठते नहीं, ये अपने अंदर काली भेड़ू को नहीं पहचानते, ये नहीं जानते कि यही IMF के साथ जब माहदे साइन होते हैं, इन्हीं बिलों पे, इन्हीं बिजली के बिलों के अंदर जब टैक्स लगाने की शराइत पर अमल कर रहे होते हैं, तो यही कौम शादियाने बजाती है कि आज हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, आज हमने अपनी कौम के ऊपर आज नया टैक्स लगा दिया। अजीज दोस्तों, यहाँ पर आज जो मैं आपके सामने, वक्त कम है, मुकर्रर ज़्यादा है, मैं जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस वक्त आप खड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम के मुंतजिम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपनी सियासी वाबस्तगियों को बालाए ताक रखते हुए वो यहाँ पर इकट्ठे हुए और आपको मुज्तमे किया और शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर अजीज दोस्तों, मैं आपसे ये बात करते हुए अपनी बात को इख्तिताम तक लेकर जाऊंगा कि आप आज यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आए, जब इंतखाब का वक्त आए, तो आप देख लीजिएगा कि किस किस टैग के ऊपर कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, हर उस पार्टी को मुस्तरद कीजिएगा जो IMF के शराइत के ऊपर दस्तखत करती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। मैं अलियाने मॉडल टाउन के गजूर आवाम को जो इस टाइम अपने हक के लिए ज़का की मिल चौक में आज ये प्रोग्राम कर रही है, इंतज़ामिया को और खुसूसन उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस काम में शिरकत करके ये बावर करवा दिया है कि जब आवाम के हकूक़ पर डाका डाला जाएगा तो यहाँ की आवाम सोएगी नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़ी होगी। इंशाअल्लाह आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये अवानों तक पहुँचेगा। मैं एक चीज़ आपको वाज़िया करता चलूँ, ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इनके वज़ीर आज़म ने जब पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, खैबर पख्तूनख्वा तक जब ये एहतजाजी तहरीक चली तो उसने अपनी काबीना का इजलास तलब किया, तो उसमें उसने फ़ौरन ये हुक्म सादर फरमाया कि हम बिलों की किस्तें कर देंगे। मैं अजीज़ दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, ये आपको लॉलीपॉप दिया गया है, बिलों में किस्तें कर देंगे, उसका क्या फ़ायदा? किस्त तो वैसे ही लीगली तौर पर आपके जो सब डिवीज़न ऑफिस में इसमें से 2 किस्तें तो वो कर देते हैं, अगर 3-4 करवानी है आपने तो आपके मरीड जो एक्सचेंज का ऑफिस है वहाँ से हो जाती हैं। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान काकड़ साहब को ये मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि अगर आप आवाम के साथ अगर आप थोड़ा सा भी उनका ख्याल करते हैं या उनकी आपको परवाह है तो जो बिजली की असल कीमत है, बिल के वो डायग्राम बना होता है, उसकी जो बिल की असल कीमत है उस पे आवाम से बिल वसूल किए जाएं, ये जितने भी टैक्स हैं ये माफ़ किए जाएं। और इसके अलावा आज ये 2 दिन का नोटिस है, इस पे काफ़ी लोग तशरीफ़ ले आए हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा एक ट्रेडर है, असल फिल्म अभी बकाया है जो चंद दिनों में आप लोगों के सामने आएगी। इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ी तो इससे ज़्यादा आवाम इस सब डिवीज़न स्वांग कैंप जो वापडा का है, ये कौमी इदारे हमारे अपने इदारे हैं। सब डिवीज़न ऑफिस सरकारी ऑफिस है, वो हमारा, हम भी टैक्स देते हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारे टैक्स देते हैं, ये ऑफिस हमारा घर है। अगर ये जो हमारा पुरअमन एहतजाज है इसका जो मैसेज है उन तक पहुँच जाएगा, अगर उन्होंने फिर भी
कोई ऐसा इकदाम ना उठाया तो मजबूरन हम वो रास इकदाम करेंगे, फिर इनको पता चल जाएगा। मैं इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा टपकेगा जब लहू मेरा। माशाल्लाह सारी सियासी जमातें और कमेटियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत थी कि सारे लोग इस बात पे इकट्ठे हों। मैं स्टेज पे दावत दूंगा राजा मुदस्सिर अब्दुल्ला साहब को कि वो स्टेज पे आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। काबिल साद एहतराम ज़ुअमा यूनियन कौंसिल उमक, इस पंडाल में मौजूद अवामुन्नास, मजहबी कारोबारी अशखास, अंजुमन ताजरान, JUI से तशरीफ़ लाए नुमाइंदगान, जमात इस्लामी से आए गए तमाम शुरका, इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस अवाम का जम्मे गफ़ीर को इधर आने पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि करते हैं ग़ुलामों को ग़ुलामी पे रज़ामंद, तावील मसाइल को बना के बहाना। कि आज आपने देखा कि 75 साला पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। आज इस पाकिस्तान रियासत खुदादाद पाकिस्तान में आइनी, कानूनी, खारजी, दाखिली बहरान ने जन्म लिया है और आज ये अवाम, पिसी हुई अवाम आपको ये आवाज़ें दे के बुलाती है कि ये किस किस्म के टैक्स है, ये किस किस्म की महंगाई है। अवाम तो अपने आपको नुमाइंदा चुना, आपकी इन नाकाम पॉलिसियों ने इस पाकिस्तान को किधर ला के खड़ा कर दिया कि आज एक गरीब खताए गुर्बत से नीचे लकीर वाला तो अपनी जगह, लेकिन सफेद पोश के लिए भी जीना अजाब बन चुका है। हम ये मुतालबा करते हैं कि कल रात को आप देखें कि जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत ने और इन पॉलिसी साजों ने कल दिन 12 बजे इस चीज़ से इनकार किया कि किसी किस्म की कोई पेट्रोलियम मसनूआत पे इजाफा नहीं किया जा रहा है। रात को 12 बजे इन्होंने फिर डाका डाला है और ये तारीखी डाके मारे जा रहे हैं कि आप देखिए कि बिजली की कीमत हम अवामुन्नास पूरी की पूरी दे रहे हैं, जबकि 13 किस्म के टैक्स हम पे इजाफी थी इनकी अयाशियों के लिए दिए जा रहे हैं। 34 लाख यूनिट जो है उनके किसी किस्म का कोई 1 रुपया भी वसूल नहीं किया जा रहा है, प्लस इनके मराहत जो दी जा रही है। हम ये मुतालबा करते हैं, ये अवाम आपसे मुतालबा करते हैं, ये यहाँ खड़े हुए ये पैगाम है इनको कि ये मराहत और ये आयाशियाँ इस मकरूज मुल्क से ख़त्म की जाए, इदारों को अपनी हदूद में आना चाहिए। और हमारा इस वक्त मौजूदा बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, रास्ता निकाला जाए, जमहूरियत को परवान चलाया जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस की जाए। वस्सलाम, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आटा महंगा, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, यहाँ जीना महंगा, यहाँ मरना महंगा। ये महंगाई जो है इस अवाम ने मुस्तरद कर दी है। इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचेगी और आवाम को इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगा। तमाम पार्टियों से हटकर हम ये मुतालबा रखें कि जालमाना टैक्स को ख़त्म किया जाए। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अगर ये टैक्स कम नहीं होता तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा एहतजाज और सरकारी इदारों के सामने किया जाएगा। मैं इंतज़ामिया का, सरदार मुस्तफ़ा साहब का और तमाम आने वालों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ, जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही नहीं दस्तों गिरिबाज जमाने से मैं जिस जगह भी खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। इन्हीं लफ्जों और इन्हीं मिसरों के साथ मैं दावत दे रहा हूँ जनाब चौधरी आबिद साहब को कि वह माइक पे तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। चौधरी आबिद साहब। हम जिस मकसद के लिए, जिस काज के लिए यहाँ जमा हैं, मुझे
ایک تو یہاں خوشی ہوئی کہ یہاں تمام سیاسی پارٹیوں کے جو اس علاقے کے قائدین نمائندے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. بیوروکریٹ، ہمارے ججز، ہماری عدلیہ، ہمارے جرنیل، ہمارے سیاستدان جتنے بھی ہیں، یہ جو 10% ہیں ان کو فری چیزیں مل رہی ہیں، وہ ان کو ہم پال رہے ہیں، اور یہ غریب کا خون نچوڑ کر اپنے گھر کا چولہا چلا رہے ہیں، اور غریب کا چولہا جو ہے وہ بجھ رہا ہے. تو میں تمام دوستوں کا، خاص کر سردار مصطفیٰ صاحب کا اور باقی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کم از کم انہوں نے اپنے اس علاقے میں لوگوں کو جمع کیا ایک پلیٹ فارم پہ، اور ہمیں اس سے بڑھ کر آگے نکلنا ہوگا. آج تو یہ ہماری ایک کال پر اتنے لوگ ہوئے، تو اس کے بعد اگلا جو لایا عمل ہو، آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا کام نہیں، کسی سیاسی جماعت کے جلسے کے لیے نہیں، یا کسی اور کاز کے لیے نہیں، یہ آپ کے اپنے حق کے لیے ہے کہ آپ جتنے بھی یہاں دوست گٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 10 بندے بھی آپ لے کر نکلیں تو ایک ہجوم بنے گا، ایک احتجاج ریکارڈ ہوگا، اور حکومت تک ہماری آواز، ایوانوں تک ہماری آواز پہنچے گی. جب آواز ہماری ایک آواز ہو کر عواموں تک پہنچے گی تو وہ بھی مجبور ہوں گے، ان کو بھی پتہ لگے گا کہ عوام اب جمع ہو گئی ہے اپنے حقوق چھیننے کے لیے. تو انہی الفاظ سے میں آپ تمام دوستوں کا، سردار مصطفیٰ صاحب، ملک عادل صاحب، سردار مرتضیٰ صاحب، راجہ مدثر صاحب اور تمام دوست جن کے میں نام نہیں لے سکا، تمام دوستوں کا اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہو، ہم لوگ اگر اس سیاست میں ان ہوئے ہیں تو صرف اور صرف اپنی اس غریب عوام کے لیے، کیونکہ جہاں پہ ہمیں یہ ہمارے بھائی بزرگ اور اہل علاقہ جہاں پہ عزیز ہے وہاں پہ پارٹیاں عزیز نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، فضل و کرم سے، جب تک ہم لوگ آپس میں اتفاق سے چلیں گے ہم اپنا حق چھینیں گے بھی، اور اگر ہمارے حق کی طرف کوئی دیکھے گا ہم اس کو اپنے حق کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیں گے. انشاءاللہ جیسے مصطفیٰ بھائی نے، افضال مغل صاحب نے، عابد بھائی نے، مدثر بھائی نے، کیونکہ ہم لوگ سارے الگ الگ پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ پارٹیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ عوام الناس کا معاملہ ہے، اور جہاں پہ عوام الناس کا معاملہ آ جائے سب کو یکساں ہو جانا چاہیے، تب ہی اپنا حق ملتا ہے. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے یہ لوگ سارے بھائی آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے 2 قدم آگے ہی ہوں گے، انشاءاللہ پیچھے نہیں ہوں گے. اور اس سے علاوہ بھی جب بھی آپ لوگ انشاءاللہ کال کریں گے آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی، ہمارے پاکستانی عوام کا معاملہ ہے، اور اس عوام کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ 2 قدم آپ لوگوں سے آگے کے چلیں گے. اور رہی بات باقی مسائل کی، انشاءاللہ جس طرح اس چیز پہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اسی طرح باقی کاموں میں بھی آپ لوگ اتفاق کریں. اتفاق میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، انشاءاللہ ہمارا حق ہم لوگوں کو ملے گا. اور ہم اعلیٰ انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جو بم گرایا گیا ہے بجلی کی صورت میں یہ ختم کیا جائے، کیونکہ غریب عوام آگے ہی بہت پریشان ہے. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ سب کی جانیں ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ پہ جس کے لیے 2 جہاں بنے، زمین و آسماں بنے. میں سب سے پہلے آپ عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ میرے دوست راجہ مدثر صاحب، افضال مغل صاحب، سٹیزن فورم، اپنے تمام احباب کا بے حد مشکور و ممنون ہوں. آپ یہاں پہ سب تشریف لائے، نیازیاں سے کیانی صاحب نظر آ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ. ایک شعر ہے کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں. جو ہمارے حالات ہیں نا اس کے اوپر ہے کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں. عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. وہ جن کی روشنی کچے گھروں کو جگمگائے گی، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ دن اپنے بدلتے ہیں. دراصل ان سب چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کبھی سوچا آپ نے؟ ہمارے ملک میں طبقاتی جنگ ہے. 2 قسم کے طبقات ہیں ہمارے ہاں، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے، ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، ایک جاگیردار ہے اور ایک حاری مزدور ہے. اور یہ جنگ آج سے نہیں شروع، یہ روز اول سے شروع ہے.
मुझ समेत यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, एक रेडी बांध तक, एक मजदूर तक, हम सब निचले तबके में आते हैं, हम आम लोग हैं। हमारी जहाँ पे भी वाबस्तगियाँ होंगी सियासी, वो अपनी जगह पे है, लेकिन हम सब एक दूसरे का दुख दर्द समझने वाले हैं। इस एक बात से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते कि वो फलां किसी जमात से, हम किसी जमात के पे होल्डर नहीं हैं, कोई तनख्वाह नहीं लेते। हम अपनी आवाम के काम करते हैं, सुबह से शाम अपनी आवाम के अंदर रहते हैं। मैं एक सियासी मजदूर की तरह काम करता हूँ। जिस तरह एक मजदूर चौक चौराहे के अंदर काम करता है, इसी तरह मैं पूरा दिन, और मेरे साथ ये मेरे भाई, बाकी सियासी जमातों के दोस्त, ये सब हम लोग एक सियासी मजदूर की तरह पूरा दिन इन गलियों में रहते हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये फील्ड हमने अपनी पसंद पे चुनी है, किसी मजबूरी में नहीं आए हम लोग, कोई सरमाएदार को देख के नहीं आए, हमने अपने लोगों के मसाइल देख के ये ज्वाइन किया। तो मैं बात कर रहा था कि दो तबकात हैं यहाँ पे। एक हम लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, 16 घंटे 18 घंटे जॉब करते हैं, और हमारी जो मेहनत की कमाई होती है उसके ऊपर अशरफिया पलती है। वो अशरफिया, ये हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जर्नल हो गए, जज हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, सियासतदान हो गए, ये सब हमारा खून निचोड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि एक औरत जो पूरी ज़िंदगी लोगों के घरों में काम करके जमा पूंजी जमा करती है अपनी बच्ची को इज़्ज़त के साथ किसी घर में बेचने के लिए, उसकी वो सारी पूंजी अगर बिलों पे लूट जाए तो वो क्या करेगी? दूसरी जानिब अमीरों के कुत्ते भी एसयू में लेटते हैं। एक तरफ हमारे लोग कमरे बंद करके अपने बच्चों को ज़बह करके फाका कशी से तंग होके खुद को फांसी पे लटका देते हैं, दूसरी तरफ इन अमीरों की शादियों के अंदर अरबों रुपया लुटाया जाता है। ये दो तरह का निज़ाम क्यों है? ये आपने और मैंने सोचना है, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी है। आज मुझे बताएं, कोई आपके धरनों में, कोई आपके प्रोग्रामों में, ये जो आज एक नवीद उठी है ना पूरे मुल्क में एहतजाज की, सलाम पेश करें उन सब लोगों को जो इसमें शामिल हैं और इसका हिस्सा बने। आहिस्ता आहिस्ता जागेंगे मुझे पता है, लेकिन ये लोग, ये हुक्मरान तबका हमें जगाएगा ज़रूर, और जब हम जाग गए तो इनकी नींदें हराम हो जाएंगी। किसी ने कहा था कि हम जागते हैं तो तुम लोग सोते हो। आप मुझे बताएं, हम कहाँ सोते हैं? हमें रात को जब ये देखते हैं कि बिल सुबह जमा करवाना है, बच्चों की फीसें जमा करवानी है, बच्चों की शादियां करनी है, तो नींद आती है? मुझे बताएं। एक फैक्ट्रियां ये सामने हैं, ये सरमाएदारों का गढ़ है ये सामने। आप मुझे बताएं कि इन फैक्ट्रियों के अंदर कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000 से मैं 20,000 बिल आप कैसे देंगे? 8,000। और अगर देंगे उसके बाद आप खाएंगे क्या? तो ये एक जदोजहद है, इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आज आगाज़ है और इसके हमने मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। आज हमने बिजली के लिए निकले हैं, कल पेट्रोल के लिए निकलना पड़ेगा, परसों आटे के लिए, फिर चीनी के लिए निकलना पड़ेगा। और एक दिन चूँकि देखें, जो हमारे यहाँ पे इंसाफ के इदारे हैं, हमारी अदलिया है, वो 130वें नंबर के ऊपर है। जो इंसाफ के ऐसे इदारे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जब वो हमें निचोड़ रहे हैं तो हमें भी छीनना पड़ेगा। इस एक बात को समझना पड़ेगा कि अपने हुकूक हमें छीन के लेना पड़ेंगे। उसके लिए आपको इत्तेफाक करना होगा। हमने पूरी ज़िंदगी एक जुमला पढ़ा है किताबों में कि इत्तेफाक में बरकत है, और अल्लाह की कसम पूरी ज़िंदगी इस पर अमल नहीं किया। ये वो वाहिद जुमला है जिसको पढ़ के नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें अपनी ताकत का नहीं पता। कहीं ज़रा मुतहिद हो जाएं। आज ये तहरीक कश्मीर से उठी है तो उन सब ने बिल जला दिए। मुझे यहाँ पे 10 मिले, उन्होंने कहा हमने तो जमा करा दिए। तो ये सबको मिल के इत्तेहाद से काम करना पड़ेगा तो हम कामयाब होंगे। आज ये देखें, ये हमारे बुर्जी में ज़मीनों के ऊपर दिन दिहाड़े कब्ज़ा हो रहा है। आपने अगर दो कौमी नज़रिए की बेहतरीन मिसाल देखनी है तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलें, एक बाउंड्री लगी हुई है, उसके अंदर की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल देखें और हमारा लाइफ स्टाइल देख लें। उन्होंने अपने गटर हमारी तरफ मोड़े हुए हैं, और शहद की नहरें जो भी हैं वो सब अंदर ही बहती हैं। और इसके बाद जो हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन बची हुई है उसके ऊपर वो दिन दिहाड़े कब्ज़ा करते हैं। हम इसको भी कंडेम करते हैं। और आप सबको ये गुजारिश है कि कोई भी मसला होता है, जब तक आप उठेंगे नहीं,
वो मसला हल नहीं होगा। ये भूल जाएं कि आप घर में लेटेंगे और आपको हुक्मरान जो आपको पूछते भी नहीं। आज किसी मुजाहरे में कोई हुक्मरान वक्त आया, वो टीवी के ऊपर बैठ के हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि कोई मसला नहीं है, कोई बड़े बिल नहीं है, आप जमा कराएं। तो इन लोगों के पीछे हमने क्या करना है? हमने अपने एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के बाजू बनने हैं। मैं आज सबका बेहद मशकूर हूँ, आप लोगों का भी बेहद मशकूर हूँ। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, राय साहिब साहब आए, अली मोहुद्दीन साहब मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं, ये मलक आदल साहब हैं, राजा मुदस्सर साहब, चौधरी आसफ अजरम साहब, चौधरी आबद साहब, अफजाल अहमद मुगल साहब, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ। हम सब एक हैं। ये मैसेज हमने देना था सियासी लोगों ने, अब मैसेज अवाम ने देना है कि वो भी एक है कि नहीं है। कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। मैं इसी पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि अजान का वक्त है और अली मोहुद्दीन भाई आखिरी कलमात अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन इज्तिमाई मामलात में कभी कभार इकट्ठा हो जाना चाहिए। पूरे इलाके की तरफ से मसाइल के ऊपर जो मुश्तरका मसाइल होते हैं उन पर एक इज्तिमाई और मुश्तरका पैगाम जाना चाहिए कि हमारे जितने भी इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अपने इन मसाइल के मामले में हम मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, और उसी चीज़ का एक आज यहाँ पे इजहार हो रहा है। इस वक्त फिलवाक़े लोग बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और जिन लोगों को एहसास करना चाहिए वो कतई तौर पर इस चीज़ का एहसास नहीं कर रहे। हमें इन हालात में हुकूमत वक्त को भी मुखातिब बनाना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज और मज़म्मत की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन अपने गिरदो पेश जिस हद तक हम खुद भी कर सकते हैं अपने लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए, और जिस हद तक हमारी इस्तिताअत हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनके घरों में खाने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। वो उनकी गैरत और ज़मीर उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वो अपनी इस मजबूरी का जिक्र और तज़किरा करें। तो फिर एक वक्त आएगा कि इन बस्तियों के लोग उठेंगे और उन बस्तियों को जाकर आग लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिल्कुल मॉडल टाउन की गयूर अवाम की तरफ से यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में अवाम मौजूद थे जो महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है एहतजाज का सिलसिला जारी है। कमर तोड़ महंगाई जो है, एक तरफ पेट्रोल की महंगा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, दूसरी तरफ जो बिजली के भारी भरकम बिल्लात में जो है इजाफा किया जा रहा है, तीसरी तरफ आटा और दुनिया की हर चीज़ जो है पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन उसकी महंगाई में इजाफा होता चला जा रहा है। मेरे साथ गयूर अवाम जो भी यहाँ पे एहतजाज गिर थे, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।